تو انہوں نے اس میں 4 جملے بولے ہیں مجھ سے متعلق. انشاءاللہ میں وہ اتار بھی دیتا ہوں, کیونکہ انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ انجینئر صاحب ایک کلپ میرے بارے میں اپلوڈ کریں. سرکار کر دیتے ہیں انشاءاللہ. ہم تو چاہ رہے تھے کوئی بڑا باہر نکلے, تو چلیں اتنا بڑا نہیں لیکن ٹاپ 5 کے بڑوں میں تو یہ آتے ہیں, یہ باہر نکلے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہم تو ایسے گاہ کے انتظار میں تھے, آگے اللہ کے فضل سے. یہ جو مرزا جیلوی جہنمی ہے, اب اس کے بڑھتے ہوئے فتنے کے مقابلے میں آج سے مرزا ملعون کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسے اپنے مسائل میں سے جس مسئلے پر سب سے زیادہ گھمنڈ ہے وہ ایک مسئلہ اپلوڈ کرے, وہ ایک مسئلہ جس پر اسے سب سے زیادہ گھمنڈ ہے. اللہ کے فضل سے میرے سینکڑوں شاگرد اس کا محاسبہ کر کے دن دہاڑے اس کو تارے دکھا دیں گے. اصل میں یہ فتنہ پلانٹ کیا گیا اور مرزا قادیانی کی طرز پر اس کو اٹھایا گیا. یہ گستاخ جس کی زبان سے کوئی بھی محفوظ نہیں, اس کو فوراً لگام دی جائے. 4 جو انہوں نے باتیں ارشاد فرمائی. نمبر 1, وہ کہتے ہیں اس بڑھتے ہوئے فتنے کا تدارک کرنا ضروری ہے, جس طرح کے باقی 2 فتنے ہیں, محمد بن سلیمان اور گیرٹ ولڈرز جس نے وہ گستاخانہ خاکے بنوائے, اور تیسرے نمبر پہ مجھے انہوں نے ذکر کیا. نمبر 2, انہوں نے کہا کہ یہ مرزا ملعون ہے, یعنی مجھے انہوں نے کہا کہ یہ لعنتی ہے. نعوذ باللہ. تم جس مسئلے میں بھی گھمنڈ رکھتے ہو نا کہ یہ تمہارا سب سے مضبوط مسئلہ ہے, اس سے متعلق ایک ویڈیو اپلوڈ کر دو. اب میں آگے ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ وہ آگے سے کہیں گے کہ میں اس ویڈیو کا جواب دوں گا. کہتے ہیں میرے ہزاروں سٹوڈنٹس جواب دیں گے. اوے تواڈے مرے بھی زندہ ہو جانا نا, انجینئر دی ایک گل دا جواب نہیں دے سکتے. ہزاروں سٹوڈنٹس, وہ چھڑ دو اللہ دے بندے ہو, آپ نکل باہر. ہزاروں سٹوڈنٹس, یہ خود پتہ کیوں نہیں نکلتے, انہیں پتہ ہے ہم ہار گئے تو پورا فرقہ ہی ہار جائے گا. سمجھ آئی؟ اگر سٹوڈنٹ کا منہ ٹوٹ گیا نا تو کہیں گے یار ابھی تو ہم نے چھوٹا لانچ کیا تھا, کون سا میں ابھی سامنے آیا ہوں. بڑا کڈو, زندہ یا مردہ کڈو باہر انہوں نے. تواڈے تے برا وقت آیا ہے, تسی تے کہندے مردے بھی زندہ ہوندے نے, کڈو باہر لیاؤ سامنے. اور میں تیری فرمائش پوری کرنا گا انشاءاللہ, رکھڑ لگا شاید جدا تو جواب دینا ہے, اور ٹائم قیامت تک کی. ہاں کوئی چیلنج نہیں ہے. میں نے ایک ہفتہ نہیں گزرنے دیا, میں نے چونکہ اتوار کو ہی بولنا ہوتا ہے نا, تو پہلی اتوار یہی آئی ہے, تو میں نے ادھار نہیں رکھا اگلی اتوار تک. میں وہ کلپ آپ کی فرمائش کے اوپر ڈاکٹر صاحب بنانے لگا ہوں, اور آپ کی آنے والی نسلوں میں بھی کوئی جواب دے دے, علمی جواب ہے, نہیں کہ جواب اپلوڈ ہو گیا. تیسری بات انہوں نے کی کہ یہ انجینئر کا فتنہ پلانٹ کیا گیا ہے جس طرح مرزا غلام احمد قادیانی کو پلانٹ کیا گیا تھا. اندازہ کریں اوے بے شرمو, جن کے ابوں نے اشرف علی تھانوی رسول اللہ اور چشتی رسول اللہ اور شبلی رسول اللہ اور معاویہ رسول اللہ پڑھوایا ہوا ہے, ان کی اوقات کے مجھے غلام احمد قادیانی دجال کے ساتھ تم لوگ ملا رہے ہو. پھر چوتھی بات انہوں نے کی کہ اس گستاخ کی زبان کو لگام دی جائے. سرکار اس زبان کو لگام دینے والا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا اللہ کے فضل سے. زبانوں کو ان کی لگام ملتی ہے جو ریاستی اداروں کے چندوں کے اوپر ان کا کام کرتے ہیں, اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے انہی کے گلے کاٹ رہے ہیں. یہ جا کے ان کو یہ باتیں کرو, جو پہلے دن سے اپنی جیب سے لگا رہے ہیں نا, اسے کسی کی کوئی دھوس نہیں ہے, نہ وہ کسی سے رکنے والا ہے. جس کی یوٹیوب کی 1 مہینے کی کمائی تمہارے ہزاروں مدارس کی چندہ بک سے زیادہ ہو, اگر وہ ویڈیو ایڈ چلائے 80 سے 90 لاکھ تک وہ مہینے کا کما سکتا, اور وہ اس نے چھوڑا ہوا ہو, اس کو تم لوگ جو ہے وہ اس طرح کی دھونسے لگاتے ہو. تو یہ 4 باتیں انہوں نے کی, اور اینڈ پہ جو انہوں نے جملہ بولا چوتھی بات میں کہ جی اس گستاخ کو لگام دی جائے. تو یہ گستاخ کا ان کا ہتھیار پرانا ہے. ان کے جو اعلیٰ حضرت تھے نا, ان کا بھی یہی ایک ہتھیار تھا جس کے ذریعے انہوں نے دنیا پہ رول کیا. اب اشرف آصف جلالی صاحب کو یہ پوری پکچر سامنے رکھنے کے بعد نا, ان کی ڈیمانڈ کے اوپر جو انہوں نے کہا تھا وہ میں 4 ریفرنسز رکھنے لگا ہوں. حق 4 یار کی نسبت سے, بلکہ پنج تن پاک کی نسبت سے 5 ریفرنس رکھ دیتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ حق 4 یار سے تو اسے مسئلہ نہیں ہوگا. جب میں 5 تن پاک کہوں گا نا تو اس کی رگ پھڑکے گی. 5 تن پاک کی نسبت سے. اور پھر میں ان کی عوام سے کہوں گا کہ اب ان کو پوچھو تم علمی طور پر کہ تم لوگ کس لیگیسی کو آگے لے کے چل رہے ہو. اب وہ جناب 5 تن پاک کی نسبت سے آپ 5 حوالے لے لیں. سب سے پہلے چشتی رسول اللہ, ہائے مشہور زمانہ. اب ویسے حشر بیست والوں نے نا اس واقعے کو نا چینج کر کے نا وہ چشتی رسول اللہ کی جگہ بھی محمد رسول اللہ کر دیا, باقی سارا واقعہ اونجی لکھے آ جائے, مولوی نے ایک پوری جی ہوں دیجیے. وہ کہتے ہیں جی وہ معین الدین چشتی المتوفا 633 ہجری, اب پتہ نہیں انہوں نے یہ کیا کہ نہیں, ہم 1 ٹن حسن ظن رکھتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کیا ہوگا, ان کے کسی ماننے والے نے لکھ دیا. بھلے ان کا دعویٰ ہے کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں ان کے پاس کوئی مرید ہونے آیا تو انہوں نے کہا کہ تم کلمہ کیسے پڑھتے ہو, تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو ان کا ایک دفعہ میرے کہنے پہ پڑھو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ, نعوذ باللہ. وہ کہتے ہیں اس نے پڑھ دیا, وہ اتنے خوش ہوئے کہ اس خوشی میں انہوں نے اسے بیعت کیا, انعامات سے نوازا, اور اینڈ پہ جاتے جاتے انہوں نے کہا کہ وہ کلمہ تو وہی تھا جو پہلے تم نے پڑھا تھا, یہ میں نے تمہارا امتحان لیا تھا. اب یہ آخری جملے پکڑ کہتے ہیں دیکھیں انہوں نے رجوع کر لیا. نا بھائی, جس وقت اس نے چشتی رسول اللہ پڑھایا تھا اس وقت وہ پڑھانے والا خود بھی کافر ہو گیا تھا, جب تک کہ وہ خود کلمہ پڑھ کے مسلمان نہ ہوتا.
اور کافر ہونے کی وجہ سے اس کی بیعت بھی ٹوٹ گئی, چاچی بھی گئی. اوے چاچو, پہلے چاچی نہ نکاح دوبارہ کر, پھر مرید دوبارہ کر. چاچو تیری چاچی گئی. ہاں کلمہ کفر بولنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. آپ کو تو کہتے ہیں آپ جھوٹی موٹی بھی قادیانی لکھ کے چلے جائیں جرمنی تو ہو جائیں گے. تو آڈے بابے سچی مچی اپنے نامہ دے کلمے پر آڑتے وہ نہیں ہوں گے. دیکھا کتنے چک مارے جا کے میں, چیکاں سنو انہاں دیا. کہتے بعد اشتے کر لے, بعد چھڑو بھائی. کیا سیدنا ابوبکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین اپنے دور خلافت میں نیو مسلمز کو پہلے اپنے ناموں کے کلمے پڑھاتے تھے؟ بے شرمو, اپنے بابوں کو بچانے کے پیچھے جھوٹا دفاع کرتے ہو کہ جی بعد اس کر لیا سی. اس طرح نہیں ہوتا. توبہ کرنے کا پھر طریقہ یہ ہے کہ خود سے پہلے مسلمان ہوں گے, خود پہلے ایک پیر تلاش کریں گے, کیونکہ وہ چین بھی ٹوٹ گئی, اس کی اپنی بیعت بھی ٹوٹ چکی ہے, اس کو کہاں سے مرید کرے گا. اچھا یہ میں نے زخم ان کا اتنا چھیلا. اب دیکھیں ایک ایک کر کے سارے میدان میں آئے کہ یہ کتابیں چینج ہو گئی ہیں, واقعہ ہے غلط ہے میں صدقے میرے تو پہلے کیوں نہیں سی پتا. تو پچھلے 1000 سال کے سارے بزرگوں کا علم غیب فارغ ہو گیا. آپ تو کہتے ہو بزرگ دلوں کا حال جانتے ہیں, کتابیں چھاپتے رہے بزرگ, کسی کو نہ پتا چلا. وہ مجدد کون ہے جس نے تمہیں بتایا؟ ہاں یہ میں فار دا سیک آف جوک کہہ رہا ہوں, مجھے کوئی ضرورت نہیں ان سے کوئی سرٹیفکیٹ لینے کی, یہ ان کو شوق ہوتا ہے مجدد کہلوانے کا. وہ بتاؤ کس نے تمہیں بتایا؟ کہتے ہیں دیکھیں جی اعلیٰ حضرت نے نا فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہہ دے انا رسول اللہ تو وہ کافر ہوگا. یار اعلیٰ حضرت نے کیڑی راکٹ سائنس ہے جڑی عوام نو دسی ہے, تو سب مسلمانوں کو پتا ہے. یہ اس کا فخر بتا رہے ہیں کہ جو انہوں نے بہت پیارا فتویٰ دیا جو کہ کہہ دے رسول اللہ کے بعد کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو وہ کافر ہوگا. ایک کیڑی ہونے کوئی ایسی وڈی گل ہے جڑی سمجھاتی امت نو. یہ پتا انہوں نے کیوں نکالا؟ کیونکہ میں اعلیٰ حضرت نو پھاڑ لیا. ہائے صدقے, اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا کہ جو چشتیہ کے بزرگ ہیں نا ان کی کتابوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے. تو انہوں نے اعلیٰ حضرت کے پیچھے چشتی رسول اللہ کو چھپا لیا کہ حشد بھی چشتیہ کے بزرگوں کی کتاب ہے, لہٰذا نا اعلیٰ حضرت بری ہیں اس سے, وہ تو پہلے کہہ چکے ہیں کتابیں بدل چکی ہیں تو ہمارے مجدد تو اعلیٰ حضرت ہیں. نا سرکار, وہ 14ویں صدی کے مجدد نے 15ویں ہیں. ہاں ایس صدی کا مجدد چاہیے وہ تو 14ویں صدی کے مجدد نے. اور دوسرا اعلیٰ حضرت سے بھی یہ غلطی ہو گئی, انہوں نے فتاوی رضویہ کے اندر ایک کتاب کی تعریف کی 7 سنابل, اور کہا کہ یہ کتاب رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. اس کتاب میں چشتی رسول اللہ نکل آیا ہے. لہذا اعلیٰ حضرت کا کہنا کہ چشتیہ کی کتابوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ فارغ, کیونکہ وہ عام بات تھی, یہ خاص بات ہے. انہوں نے کہا کہ نبی الاسلام کی بارگاہ میں 7 سنابل مقبول ہے, اور اس کے فارسی نسخے بھی ہمارے پاس موجود ہیں, ہم ایک ایک ریفرنس لگائیں گے. 100 سال پرانے نسخے موجود ہیں, اس میں لکھا ہوا ہے چشتی رسول اللہ, اور اس میں اینڈ پہ بڑی پیاری بات لکھی ہوئی ہے کہ خواجہ نے کہا کہ میں کیا ہوں, میں تو رسول اللہ کے کمینے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. ہائے ہائے. تو ہمارے ایک اسٹوڈنٹ نیچے کمنٹس کیے ہوئے تھے, اور ایک کمینہ ہی نکلے تو اپنے نام کا کلمہ پڑھایا, کمینہ ہی نکلے. صحیح کیا ہے اس گل دی میں تائید کرنا, تو واقعی کمینہ غلام نکلے, جھوٹیا. اچھا وہ اعلیٰ حضرت نے اب اس کتاب کی تعریف کر دی, اس کے اندر چشتی رسول اللہ نکلا ہے. اب ان کے پاس کوئی بھاگنے کا راستہ نہیں ہے. اور سب سے بڑھ کر ان کے جو مولوی آج کل چھوٹے موٹے انہوں نے لانچ کیے ہوئے ہیں, وہ اس مناظرے میں بیٹھے ہوئے ہیں جس میں چشتی رسول اللہ کا یہ دفاع کر رہے ہیں وہابیوں کے سامنے, اور یہ چھوٹو بیٹھ کے کہہ رہا ہے سبحان اللہ. خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں, کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں, کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. ہائے میں صدقے, واہ 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 واہ. میں نے یہ بھی دعویٰ نہیں کیا تھا کہ زندہ مردہ کر لو, انہیں اس دعوت حق کے آگے بند باندھنا ممکن نہیں ہے. کیوں؟ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے سارے بابے شاہ ہی کوئی نہیں رسول اللہ کے مقابلے پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب ان کے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں. کہ آخری بات تھی. اچھا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی انجینئر صاحب کے ہم ساتھ ہیں, آپ احتجاج کریں. اچھا انجینئر صاحب کے خلاف احتجاج کرنے سے سارے کٹھے, اور تمہارے بزرگوں کا گند صاف کرنے کے لیے میں نے احتجاج کرنا ہے. دیکھو اپنا گند خود صاف کرو, میں نے تمہیں بتانا تھا. ہماری تو یہ پالیسی نہیں ہے, کوئی احتجاج نہیں, کوئی بینر نہیں, کوئی جلسہ جلوس نہیں, ضرورت ہی کوئی نہیں. ہم نے کیوں کرنا ہے یہ؟ ہم تو گھر بیٹھ کے وہ آپ کی چیخیں انجوائے کرتے ہیں. وہ مجھے جسٹس وقار سیٹھ صاحب یاد آ گئے, جب انہوں نے وہ مشرف صاحب کا فیصلہ لکھا نا, تو صبح میڈیا کے لوگوں نے کہا سرکار
पूरी दुनिया चल चल मच गई है थोड़े फैसले ना। उन्होंने कहा मुझे तो नहीं पता, मैं तो रेसलिंग देख के सोता हूं रात को। हाँ बिल्कुल, मैं भी जस्टिस वकार सेठ की तरह, मेरे भाई मेरे पास तो स्मार्टफोन भी नहीं है। हाँ मैं तो अपने तहकीकी कामों में मशगूल होता हूं, मेरी बलास है भाई अल्लाह के फजल से। ये टेंशन है तो उन लोगों को जो इन चीजों के साथ चलते हैं। वैसे तो मेरे सामने भी इनका कोई बुजुर्ग निकला है तो मैं एक दफा पढ़ूं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, गायब हो जाए। हाँ मुझे क्या फर्क पड़ता है। अच्छा अब इसके साथ इंप्लाइड है वो दूसरा हवाला, अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह। हाँ इसका जवाब भी बरेलवियों से चाहिए। कैसे चुप किए हुए हैं, चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा करते हुए कहते हैं रह गया अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह, तो इसका जवाब देवबंदी खुद देंगे। हाय मैं सदके देवबंदी बरेलवी भाई भाई बन गया। हाँ कितनी इत्तेहाद हो रही है जनाब। अभी तक काफिर कहते थे एक दूसरे को, अब कह रहे हैं हम जवाब भी नहीं देंगे। देगा तू अशरफ जलाली जवाब देगा, दसेगा कि अशरफ अली थानवी ने अपने नाम का कलमा पढ़ने वाले मुरीद को तसल्ली दी। ख्वाब में भी उसने पढ़ा और बाद में बेदारी में भी पढ़ा, और वो भी यही लेम एक्सक्यूज करते थे कि जी वो उसकी जुबान लड़खड़ा गई, वो अपनी होश में था। मैंने कहा जी देवबंदियों के साथ मैं बिल्कुल एग्री करता हूं। मैंने उस मुरीद को कुछ नहीं कहा, मैंने बाबे को कहा है, बाबी को नहीं कहा। बाबे को जब पता चला कि उसका मुरीद ख्वाब में भी और उसके बाद उठने के बाद भी पढ़ रहा है, तो बाबे का काम था कि वो कहता कि तू पढ़ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बाबे ने कहा कोई नहीं, तसल्ली है, इसमें तसल्ली है कि तेरा पीर अशरफ अली थानवी मुत्तबे सुन्नत है, इसलिए तू उसके नाम का कलमा पढ़ रहा है। वाह वाह वाह। क्या शियाने अली मौला अली के नाम का कलमा पढ़ते थे? क्या वो अली रसूलुल्लाह कहते थे? अली वलीउल्लाह आप कहें कोई मसला नहीं है, अबू बकर वलीउल्लाह के, उस्मान वलीउल्लाह के, उमर वलीउल्लाह के, अली रसूलुल्लाह किसी ने कह दिया वो दार इस्लाम से खारिज। जालिमों तुम लोगों ने अपने बुजुर्गों को बचाने के पीछे अपनी आखिरत बर्बाद कर ली। तो ये दूसरा हवाला है इनके अपने हनफी भाइयों का। हाँ इसका जवाब भी चाहिए, फतवा चाहिए इसके ऊपर। इस तरह नहीं होगा कि अपनी बात करके साइड पे। और कैसे ये इन्हीं दो कलमों के ऊपर एक दूसरे के साथ लड़ते रहे। वो अशरफ थानवी रसूलुल्लाह का दिफा करते रहे, ये चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा करते रहे। ठीक है, तो ये मैंने इनके सामने इम्तिहान रख दिया है कि ये अब तुमने दोनों बातों का जवाब मुझे देना है। ये मैं तुम्हारे खाते में डाल रहा हूं। उसकी वजह है कि तुम लोग सामने ही नहीं आ रहे, अब उस पर बात करना ही छोड़ गए हो। तीसरा हवाला कश्फुल महजूब से अली बिन उस्मान हजवेरी अल मुतवफ़ा 465 हिजरी अल मारूफ दाता गंज बख्श, जिनकी किताब मशहूर है कश्फुल महजूब, लाहौर में मजार है। हम उनके बारे में 1 लाख टन हुस्न ज़न रखते हैं कि उन्होंने नहीं लिखा होगा। मैं कहता हूं बुजुर्गों को बचाओ, आपको कि बाद में उनके मुरीदों ने डाल दिया, लेकिन कहते हैं नहीं मार्फत की बातें हैं, आपको नहीं पता। तो ठीक है, फिर मार्फत की बातें तो हम आपकी आवाम को बताते हैं ये मार्फत की बात। उन्होंने साहब और शुक्र के ऊपर चैप्टर बांधा, एक चैप्टर नंबर 14। उसमें उन्होंने जुनैद बगदादी का साहब बचाने की खातिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर एक गुस्ताखाना वाकया मंसूब किया, और बायजीद बुस्तामी का शुक्र बचाने की खातिर रसूलुल्लाह के ऊपर एक गुस्ताखाना वाकया मंसूब कर दिया, नाऊज़ु बिल्लाह। और उन्होंने कहा कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम भी तो, उनकी नजर भी अपने एक सहाबी की बीवी, जो सहाबी का नाम था औरिया, और वो पूरा वाकया तौरात के अंदर लिखा हुआ है, आज भी तौरात में लिखा हुआ है। वो टेम्पर्ड तौरात, तहरीफ शुदा, उसके रेफरेंस को कोट किया अपना बाबा बचाने की खातिर। एक तो है ना वाकया नकल किया, नहीं रिजल्ट निकाला कि वो छत पे नहा रही थी तो उसमें नजर पड़ी, उन्होंने उस सहाबी को जंग में आगे भेज के कत्ल करवा दिया, और फिर उसकी जो बेवा थी उसके साथ खुद शादी कर ली, नाऊज़ु बिल्लाह। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम एक पैगंबर के ऊपर झूठ बांधा जुनैद बगदादी का साहब बचाने के लिए, और कहा कि शुक्र, तो शुक्र में तो हमारे नबी की मिसाल भी है, नाऊज़ु बिल्लाह, कि उनकी नजर भी अपनी सहाबी की बीवी पे पड़ी, ज़ैद इब्न हारिसा की बीवी सैयदा ज़ैनब, तो वो हुजूर को पसंद आ गई, तो अल्लाह ने उस सहाबी के दिल में अपनी बीवी की नफरत डाल दी, और फिर उस औरत के साथ हुजूर ने बाद में शादी कर ली, नाऊज़ु बिल्लाह। अब काफिरों को कोई और साजिश करने की जरूरत नहीं है, जो हमारे बुजुर्गान बेदीन ने कर दिया। और ये किताब ज़ियाउल कुरान पब्लिकेशन ने छापी, पीर करम शाह साहब का जो इदारा है, और उस किताब के मुकदमे में पीर करम शाह साहब ने सफ़ों के सफ़े काले किए हैं कि इस किताब जैसी और कोई किताब नहीं है। और हमारे जो बाबा जी खादम रिजवी साहब थे ना, जब तक वो जिंदा थे, मेरे को नसेरे ने, हाँ बहुत डरते सी मेरे को, और पता सी इन्हें चक बट लिया उन्होंने, निजी में अपने क्या इंजीनियर ना चेड़ो, गला सही पे करता पर असी गला कर नहीं सकते। हाँ वो ना कश्फुल महजूब लड़ाते थे कि जिदा कोई मुर्शिद ना किताब पढ़ ले, तो मैंने इसी तरह पकड़ कहा था, बाबा जी हाँ कश्फुल महजूब, इसमें तुम्हारे रसूलुल्लाह का स्कैंडल लिखा हुआ है, बोल अब इसके ऊपर, ये किताब है मुर्शिद पकड़ने वाली।
खादिम रिजवी साहब की जिंदगी में 2017 के अंदर एक हफ्ते में 7 लाख लोगों ने वीडियो देखी, जवाब नहीं आया। हाँ, पहली मर्डर अटेम्प्ट करने वाला बंदा आ गया जेल में मेरे पे। हाँ, उसके बाद पहली मर्डर अटेम्प्ट हुई थी, एक जवाब आया सी मेरे को, जवाब नहीं आया। ये बकवासियात लिखी हुई। अच्छा, पीर करम शाह साहब ने ना वहां मुकदमा लिखा और बड़ी तारीफ की, लेकिन जाहिर है मिस हैंडलिंग तो हो जाती है। उसी पीर करम शाह ने ज़ियाउल कुरान जब तफसीर कुरान की लिखी, उसमें जब सूरतुल अहज़ाब की तफसीर की बारी आई तो उन्होंने कहा कि गैर मुस्लिमों ने साजिश करके हमारी किताबों में गुस्ताखाना वाकयात दाखिल कर दिए हैं, जिसमें से एक वाकया सैयदा ज़ैनब और ज़ैद इब्न हारिसा और नबी इस्लाम से मुतल्लिक वही वाकया जो कश्फ मजूब में लिखा था। उन्होंने कहा ये काफिरों की साजिश है, और कश्फ मजूब के मुकदमे में लिखा कि ये बड़ी बेहतरीन किताब है। उन 10 काफिर केड़ा है जिन्हें साजिश करके किताब भी छपाया? कितनी दो नंबरी। अगर उसे पता नहीं था, किताब की तारीफ नहीं करनी चाहिए थी, और अगर पता था तो मुनाफिकत की। जिसमें मैं कहता हूं कि आला हजरत को अगर नहीं पता था तो फिर समझ लो कि आला हजरत का इल्म गैब फारिग के सबा सनाबिल के अंदर चिश्ती रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। हाँ, और गौसे वक्त का इल्म गैब फारिग, बाकी दिशाई कोई नहीं। और अगर उसे पता था फिर ईमान फारिग। अब मुझे बताएं, मैं अगर इन्हें बंद गली में दाखिल कर दूं, इन्हें भागने का रास्ता ना मिले, तो इन्होंने मेरे सर की कीमत ही रखनी है ना। हाँ, इसके सर की 22 करोड़ अवाम में एक बंदे के सर की कीमत रखी गई है। वो खुद कत्ल करे अपने जज्बा ईमानी पर, मैं उसको 5 लाख रुपए इनाम दूंगा। 5 लाख रुपए का इनाम का ऐलान करते हैं जो मिर्जा जेलमी को कत्ल करेगा। 100% मैं ऐलान करता हूँ, 100% मैं ऐलान करता हूँ। तो क्या मिला है? देख लो कि तुम्हारी इस तरह की हरकत करने से मुझे नुकसान तो कोई नहीं हुआ, और इस चक्कर में बिल्कुल ना रहना कि मेरा हौसला कहीं पे पस्त होता है। नहीं, मेरी तो ऑक्सीजन ही तुम्हारी चीखें हैं। हाँ, मुझे ठंडा करना ना तो बस चुप हो जाओ। हाँ, वरना बोलोगे तो मैं मंजी ठोकांगा। हाँ, ऐसे नहीं रखना। मैं वो नहीं हूं कि मैं चुप करके बैठ जाऊं। बिल्कुल चुप करके वो बैठते हैं जो लोगों से चंदे खाते हैं। हाँ, जो एजेंसियों से पैसे लेके उनकी काज के लिए काम करते हैं। हाँ, जो अपनी जेब से लगाते हैं ना, जो गरीब नवाज लोग होते हैं। तो अड़े गरीब नवाज से जाली ने गरीब नवाज देखना देते आओ। हाँ, सैकड़ा बंदे ने अपनी जेब दुखाई दे, और पिछले 10-12 साल से खिला रहे हैं अल्लाह के फजल से, और किसी पे एहसान नहीं है, अपनी आखिरत की फिक्र में। सिर्फ इसलिए कि मेरे पे कोई इल्जाम ना लगाया कि इसने चंदा बुक बनाने की खातिर ये सब कुछ किया। मदरसा कोई नहीं बनाया, मस्जिद कोई नहीं बनाई, कोई फिरका लॉन्च नहीं किया। तुम सबको मुसलमान समझता हूं, कोई एक बहाना तुम्हारे पास मैंने नहीं छोड़ा कि जो मेरे ऊपर लगा सको, अल्लाह के फजल से। अच्छा, अब ये वाकया कश्फ मजूब में लिखा हुआ इनके गाटे में फिट हुआ है। अब क्या जवाब दें? उस शख्सियत के बारे में कह रहे हैं कि उसने अपनी साहबी की बीवी को नऊजुबिल्लाह देखा बुरी नजर से, जिसके बारे में कुरान कह रहा है मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा, तुम्हारे नबी ना कभी बहके हैं ना कभी बेराह चले हैं। जिनके बारे में बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस मौजूद कि नबी इस्लाम में कंवारी लड़कियों से ज्यादा शर्मो हया थी। अल्लाहु अकबर। इनके एक छोटे से चूजे ने कहा कि वो जी मुस्लिम में भी तो इस तरह की हदीस है, उसे तुम क्यों नहीं गुस्ताख कहते? और इस जालिम शख्स को शर्म ना आई कि मुस्लिम में क्या ये लिखा हुआ था? मुस्लिम शरीफ में एक हदीस है कि नबी इस्लाम एक जगह बैठे थे, सामने से कोई औरत गुजरी, अचानक हुजूर की नजर पड़ी, आपने नजर हटा के आप अंदर तशरीफ ले गए। थोड़ी देर बाद बाहर आए और आपने फरमाया कि अगर किसी शख्स की नजर नामहरम औरत पर पड़े, अचानक पड़ जाए, वो फौरन हटा ले। ये अलग से भी एक हदीस मौजूद है मुस्लिम में कि नबी इस्लाम ने फरमाया कि मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है अचानक उठ जाने वाली नजर के बारे में कि मैं फौरन हटा लूं। और फिर नबी इस्लाम ने फरमाया कि वो फौरन अपनी बीवी के पास जाए, उसके पास भी वही कुछ है जो उस औरत के पास है, यूं उस औरत का ख्याल उसके दिल से निकल जाएगा। इस वाक्य को उसने जोड़ दिया शुक्र वाले बाजीद बुस्तामी के शुक्र को हलाल करने वाले उस वाक्य के साथ, सैयदा ज़ैनब के। अल्लाह के बंदो, इसमें क्या लेना देना उस वाक्य का? ये तब उस तरह का वाक्य होता कि जिस औरत पे हुजूर की नजर पड़ी नाउजुबिल्लाह, जब वो अपने घर गई तो उसके खामद के दिल में अल्लाह ने नफरत उसकी डाल दी। वो औरत वापस आके हुजूर के पास पेश हुई और हुजूर ने उससे शादी कर ली। फिर होना सी है वाक्य थोड़ा कश्फ मजूब वाला। ये बेशर्म लोग अहदीस का मजाक उड़ाते हैं अपने बाबे बचाने की खातिर। इसी मैंने कहा था जो बाबा बचाएगा उसका ईमान गया। हाँ, मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, बापों का खुदा और। अगरचे वो भी इसी खुदा को मानते हैं लेकिन उन क्वालिटीज के साथ नहीं मानते। और अगर जिंदगी में एक दफा भी तूने गौर कर लिया, मेरा छोटा सा क्लिप भी देख लिया, तो तेरे अंदर से आवाज निकलेगी क्या कि ना मैं बाबी, ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी, जो आज जगह जगह आवाज बुलंद हो रही है। और इसका एंड रिजल्ट क्या है कि फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज हैज बीन डन। हाँ जी। अच्छा, ये 2 हवाले हो गए जी। तीसरा हवाला वो भी कश्फ मजूब के अंदर लिखा हुआ है, जिसकी बुनियाद पे इन्होंने सबको आगे लगाया हुआ था जी। हो जी, नबी नू कहंदे ने कि मर के मट्टी हो गया। मैं दसना कौन कहंदा है?
तुहाडे वड्डे कहंदे ने। हाँ, कश्फुल मजूम में लिखा है। और तुम्हारे एक दूसरे बड़े बाबे तज़किरतुल औलिया वाले फरीदुद्दीन अत्तार, जिसे मंगोलों ने कत्ल किया था, हाँ, उन्हीं मंगोलों की औलाद में से अब मैं मुसलमान अल्लाह के फजल से, जिसे अल्लाह ताला ने हदायत दे दी अल्हम्दुलिल्लाह, अब तुम्हारे बुजुर्गों को इल्मी तौर पे कर रहे हैं अल्लाह के फजल से। अच्छा, वो फरीदुद्दीन अत्तार जो है उसने भी नकल किया और कश्फ मजूम में भी है कि इमाम हुनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने एक दफा ख्वाब देखी कि वो रसूलुल्लाह की कब्र मुबारक में उतर कर आपकी हड्डियां जमा कर रहे हैं। हाँ जी, और शर्म आई कश्फ मजूम के तर्जमे वाले को ना, उसने पता क्या लिखा, इस्तख्वान मुबारक जमा कर रहे हैं। किड्डी शुस्ता उर्दू। इस्तख्वान, वो इस्तख्वानी निजाम आपने पढ़ा था ना, ढांचा। लेकिन तज़किरतुल औलिया के तर्जमे में उन्होंने बिल्कुल लिखा हड्डियां जमा कर रहे हैं और एक को दूसरे से अलग कर रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह। घबरा के उठे और अपने दोस्त इब्न सीरीन के पास गए। ये इमाम हुनीफा पे भी झूठ है, इब्न सीरीन पे भी झूठ है। इन्होंने अपने बाबों को ऊंचा करने के लिए झूठे ख्वाब मंसूब कर दिए। तो उन्होंने कहा इसमें बड़ी तसल्ली थी कि आप नबी इस्लाम की सुन्नतें जमा करेंगे। नबी की सुन्नतें जमा करने के लिए उनकी कब्र मुबारक में हड्डियां जमा करनी है, नाउज़ुबिल्लाह। ये किस बदबख्त का अकीदा है कि रसूलुल्लाह की कब्र मुबारक में हड्डियां। और कोई झूठा ख्वाब घड़ना था, मुझसे सीख लेते हैं, मैं तो वड्डा बरेलवी रहा। कहते कि ख्वाब में देखा है कि वो नबी इस्लाम के बर्तन समेट रहे हैं, आपकी चादर मुबारक समेट रहे हैं, आपकी लाठी समेट रहे हैं। ये बात करते तुमने कहा कब्र में उतर कर हड्डियां समेट रहे हैं, एक को एक से अलग कर रहे हैं। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पे अल्लाह की लानत। अल्लाह के बंदो, अबू दाऊद के अंदर हदीस मौजूद है और इसकी असल कुरान के अंदर मौजूद है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम वो लाठी के सहारे कितना अरसा यूं खड़े रहे। दीमक ने लाठी जब वो चाट ली तो उनका जिस्म मुबारक नीचे आया, लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जिस्म को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। वो क्योंकि टेंपल ऑफ सुलेमान, हैकले सुलेमानी तामीर करवा रहे थे। नबियों के जिस्म तो बाहर भी रखे हो तो उन्हें कोई चीज नहीं खत्म कर सकती। और तुमने रसूलुल्लाह के बारे में ये बात की। अबू दाऊद में हदीस है, इब्न माजा में भी, मिशकात के अंदर भी हदीस मौजूद है। इस हदीस के ऊपर सिर्फ इमाम बुखारी का कलाम है और वो उनको गलतफहमी हुई एक रावी के नाम की वजह से। बाकी पूरी उम्मत के मुहद्दिसीन ने इस हदीस को एक्सेप्ट किया। लेकिन इमाम बुखारी इस अकीदे को सही समझते हैं क्योंकि इमाम बुखारी सही बुखारी में लेके आया है कि हजरत उमर फारूक का पांव ऑलमोस्ट 70 साल के बाद कब्र मुबारक से बाहर निकल आया था जब हुजरा आयशा की दीवार गिर गई थी। वो तो खुलफाए राशिदीन के लिए भी मानते हैं कि उनके जिस्मों को भी अल्लाह ने प्रोटोकॉल दिया है। ये भी सही बुखारी में मौजूद है। मान ली हदीस अबू दाऊद वाली कि नबी इस्लाम ने फरमाया कि जुम्मे का दिन तमाम दिनों का सरदार है। इस दिन आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, इसी दिन फौत हुए, इसी दिन क़यामत कायम होगी। तुम जुम्मे के दिन मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ो, तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश किया जाएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अच्छा, अब सहाबा कराम ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप मर जाएंगे और आपकी हड्डियां मट्टी में मिल जाएंगी, देखें कोई 295 सी नहीं लगाई हुजूर ने सवाल करने के ऊपर, तो फिर आप पे दुरूद कैसे पहुंचेगा? आपने कोई गुस्सा नहीं खाया। आपने फरमाया इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन तअकुला अजसादल अंबिया, बेशक अल्लाह ने हराम कर दिया है नबियों के हक में कि मट्टी उनके जिस्मों को खाए, यानी नबियों के जिस्म सलामत है। अच्छा, जो इस रवायत के ऊपर कलाम करते हैं ना, जिस तरह हमारे उस्ताद शेख जुबैर लिज़ई साहब या इमाम बुखारी, उनके नजदीक वो हदीस बिल्कुल ठीक है। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में जो हजरत उमर का कौल है, जब हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम का ताबूत निकल आया था तुस्तर में, तो उन्होंने एक खत लिखा था कि ये एक नबी का जिस्म है और नबियों के जिस्मों को ना मट्टी खाती है, ना आग खाती है और ना कोई दरिंदा खा सकता है। और ये रवायत शेख जुबैर साहब ने फदलुस सलाती अला नबी में भी, दुरूशी वाले फजाइल में भी ये नकल किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो उम्मत का तो अकीदा है कि रसूलुल्लाह का जिस्म अतर जो है वो कब्र में सलामत है और आप आखिरत की जिंदगी के साथ जिंदा हैं। तो तुम्हारे बुजुर्ग ये किस किस्म का अकीदा बता के गए? 3 हवाले हो गए, चौथा हवाला भी तज़किरतुल औलिया से शेख फरीदुद्दीन अत्तार, और कुछ हिस्सा इसका कश्फ मजूब में भी मौजूद है। वो कहते हैं कि बाजीद बुस्तामी जो थे ना, वो कहा करते थे सुबहानी सुबहानी मा अअज़म शअनी, मैं पाक हूं, मेरी शान बहुत बुलंद है। नाऊज़ु बिल्लाह। चले इसमें तो घुसा लेंगे कि वो बाखुदा दीवानगी दिखा रहे थे। साथ कहा कि उनसे पूछा गया कि बताएं क़यामत वाले दिन तमाम इंसान और अंबिया किसके झंडे के नीचे होंगे? ये कहते हैं बुजुर्गों से जाके दीन सीखो। ये दीन सीखे? इन बेशर्मों को ना कुरान का पता ना हदीस का पता। तो आगे से बाजीद बुस्तामी कहता है कि मैं कसम उठा के कहता हूं कि मोहम्मद और तमाम अंबिया और पूरी इंसानियत मेरे झंडे के नीचे होगी क़यामत के दिन। नाऊज़ु बिल्लाह। ये अकीदा रखने वालों पे अल्लाह की लानत, उसका दिफा करने वालों पे अल्लाह की लानत, अल्लाह के फरिश्तों की लानत, तमाम लानत करने वालों की लानत। और ये सारे इनके जो मानने वाले हैं, तुम्हारा अशर इन्हीं लोगों के साथ हो और हमारा अशर अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम, उनके जानसार अहले बैत खुलफाए राशिदीन के साथ हो। आमीन।
फिर इस पे नहीं रुका वो, ये कह रहा है इंजीनियर की गुस्ताख जुबान को लगाम दी जाए, तेरे बाबों की जुबानें खींची जाएं। आगे बकवास करता है लिवाई आज़म मिन लिवाई मोहम्मद, मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से भी बड़ा होगा। और तेनू खाना नहीं देना किसी ने। अब फरीदुद्दीन अत्तार को पता चल गया, पिस्सू पड़ गए कि ये तो बकवास बहुत बड़े लेवल की हो गई है। और अली जवेरी साहब को भी पता चल गया, दोनों ने लिखा, कशफ मजूब में उन्होंने लिखा, तज़किरतुल औलिया में उन्होंने लिखा, नहीं असल में ना मसला यह है कि बाजीद के मुंह से अल्लाह बोल रहा था, तो अल्लाह का झंडा तो मोहम्मद के झंडे से बड़ा ही होगा ना। और लानतियो और बेशर्मो, अल्लाह का झंडा तो रसूलुल्लाह के हाथों में होगा, तुम शैतान के झंडे को तो नहीं कहीं अल्लाह का झंडा बनाए बैठे। हाँ वो झंडा भी है एक, बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि हर गादिर के लिए, हर धोखाबाज के लिए, हर खाइन के लिए क़यामत के दिन मैदान महशर में एक झंडा बुलंद किया जाएगा और कहा जाएगा, आजा थे फलाने बुजुर्ग, तू इधर थले आ, ओए ऐसी लिवाल हमद दी गल कर रहे हैं, जो शफात का झंडा है जो मेरे नबी को मिलना है। क्यों कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं। बायजीद को बचाते बचाते, अब पता नहीं बायजीद ने भी कहा है कि नहीं, कहा हो ना कहा हो, मेरी तो जूती में परवाह नहीं जाए। मैं किसी को समझता जाए, रसूलुल्लाह के गुस्ताखों के लिए एक रत्ती बराबर भी अगर हम हमदर्दी रखते हैं ना अपने दिल में, तो अपने ईमान से गए, सीधी सी बात है। बाजीद को बचाते बचाते अपना ईमान ही फारिग कर बैठे, एक टन उसने जन रखते हैं, चलो किसी ने किताबों में डाल, और हम यही तो कह रहे हैं खुदा के लिए ना किताबों आग लाओ। कहते नहीं जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक बातें वो हम ले लेंगे, वो क्यों ले लेंगे, वो कुरान और सुन्नत पहले ही मौजूद ने, वो लेके क्या करना जे, जान छुड़ाओ ना किताबें दो। और इसका नाम है बायजीद बुस्तामी। हाय मैं सदके, कहते नहीं बायजीद नाम अबू यजीद जायज है, रखो ना अपने बच्चों के नाम यजीद। हाँ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਾ ਯਜ਼ੀਦ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਲੈਣ ਜਾਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਯਜ਼ੀਦ ਅੱਬਾ ਆ ਗਿਆ। बायजीद बुस्तामी, देख बायजीद क्या कहता था, तेरे बापों की कुनियत बायजीद। और इससे बड़ी जो ब्लंडर इनसे हुई है वो ये है, वो कहते हैं इमाम जाफर का मुरीद था। और इमाम जाफर के मानने वाले आज अपने बच्चों के नाम यजीद नहीं रखते, और जो इमाम जाफर का मुरीद है उसे कह रहे हो कि उसने अपनी कुनियत अबू यजीद रखी है। देख एक तेरा इमाम है बायजीद बुस्तामी 261 हिजरी में मरा है वो, और एक मेरा इमाम है अबुल हुसैन मुस्लिम बिन हज्जाज अल कुशैरी, ये भी 261 हिजरी में फौत हुए हैं। इनकी कुनियत है अबुल हुसैन, और मुस्लिम शरीफ उनकी हदीस की किताब है यहां रखी हुई है। और तेरे बाबों की मीम्स बन रही हैं, देख बायजीद की मीम्स बन रही हैं, और अबुल हुसैन का तज़किरा पूरी दुनिया में हो रहा है। उनकी जिंदगी में उन्हें वो उरूज नहीं मिला था जो आज उन्हें मिला है। आज मुस्लिम शरीफ हो रही है। हाँ क्योंकि मेरे इमाम मुस्लिम ने लिखा अपनी सही मुस्लिम के अंदर कि क़यामत के दिन नबी इस्लाम फरमाते हैं सबसे पहले मैं कब्र से निकाला जाऊंगा, सबसे पहले मैं शफाअत करूंगा, सबसे पहले मेरी शफाअत कबूल की जाएगी। हाँ मेरे इमाम मुस्लिम ने ही लिखा सही मुस्लिम के अंदर कि क़यामत के दिन सबसे पहले मैं जन्नत के दरवाजे पे दस्तक दूंगा, और दारोगा जन्नत पूछेंगे कौन, मैं कहूंगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मुझे जन्नत का दारोगा रिजवान कहेगा कि मुझे अल्लाह की तरफ से हुक्म भी यही था कि आपके नाम के ऊपर दरवाजा खुलेगा। हाँ जी, इसी तो हम कहते हैं कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे सारे बाबे शाह ही कोई नहीं। अच्छा ये लोग फिर ना इन सारी चीजों के दिफा में इनके पास ना झूठ और दगा और भागने का रास्ता सिर्फ एक होता है, वो मैं शुरू में क्लियर कर दूं ताकि कल को ये जवाब दें तो आपको पहले ही पता हो कि यार ये जवाब तो इंजीनियर साहब ने पहले ही थोड़ा स्ट्रैटेजी देता सी। पहला ये सही बुखारी से लेके आते हैं एक तालीकन रवायत जो इब्न माजा में पूरी सनद के साथ है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 लोगों से अल्लाह ने शरीयत का कलम उठा लिया है। नंबर 1 जो मजनून है, पागल शख्स है, नंबर 2 नाबालिग, और नंबर 3 सोया हुआ शख्स। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके साथ इनके बुजुर्गों का क्या लेना देना, तो वो कहते हैं वो अल्लाह के इश्क में चूंकि मजनून हो जाते हैं ना, तो वो फिर उस मजनूनियत की वजह से बजाय ये कि अल्लाह के नबी की तारीफ करें भौंकना शुरू कर देते हैं। ये भौंकने का लफ्ज़ तो मैंने इस्तेमाल करना है, तो कहते हैं ये शतहियात है बुजुर्गों की। ना सरकार, ना 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 ना, शतहियात की टर्म सूफिया के यहां जो आपके बुजुर्गों ने लिखी है वो अल्लाह के बारे में है, पैगंबर के बारे में नहीं है। कल तक बड़े फखर से कहते थे बा खुदा दीवाना बाश, बा मोहम्मद होशियार, कहते थे जी मंसूर अलाज ने क्या सी अनल हक, अगर वो कहता अना मोहम्मद तो हम उसे काफिर कहते। मैं दसांगा तो बाबिया ने खत्म नबूत उते टाका मारे। अब मैं देखता हूं तुम लोगों का इश्क रसूल कहां जाता है, हमें धोखा दोगे तो ये तो हो गया इनका फारिग। ये रसूलुल्लाह के बारे में गुस्ताखियां जो मैं गिनवाने लगा। और दूसरी बात यह है कि अगर इन बुजुर्गों को तुम मजनून समझते हो तो फिर बुजुर्ग बना के क्यों पेश करते हो? पागल कब होना है ना, अजीबो गरीब नाम रखे ना, कभी कह देंगे कलंदर है, कभी कह देंगे मजजूब है। पागल कब होना, हदीस से पागल नहीं सुना रहे हो ना,
تو اس میں تو جو الفاظ ہیں وہ تو ہے مجنون. مجنون کو نا مجذوب اور کلندر یہ لفظ کیوں استعمال کرتے ہو؟ دوسری دلیل یہ صحیح مسلم سے پیش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے توبہ کرنے والے شخص کی مثال بیان کی جو گناہ کرنے کے بعد اللہ کی طرف رجوع لاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو اس کے اس عمل سے کتنی خوشی ہوتی ہے. کہ ایک شخص تھا اگلے زمانوں میں, یہ تمثیل کے طور پر ہے, اس کا سارا ساز و سامان اس کے اونٹ پہ لدا ہوا تھا. وہ ریگستان میں ایک جگہ رکا, اس کی آنکھ لگی, اچانک اس کا اونٹ غائب ہو گیا. آنکھ کھلی, اونٹ سامنے نہیں تھا. اب وہ اپنی موت کا انتظار کرنا شروع ہو گیا. ظاہر ہے ریگستان میں تو ایک دن تک آپ کے پاس کوئی چیز ہی نہیں ہے, اسی اونٹ کے اوپر آپ کا سامان ہے. اسی میں اسے اونگ آئی. تھوڑی دیر بعد جب آنکھ کھلی تو اس کے سامنے اونٹ واپس تھا. یعنی ایک موت کے بعد دوبارہ اسے زندگی مل گئی. تو خوشی میں اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس کی زبان لڑکھڑا گئی. بجائے یہ کہنے کے کہ اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب, اس کی زبان سے نکل گیا اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. اچھا آگے الفاظ ہیں وہ پڑھتے نہیں. من شدت الفرح, خوشی کی شدت کی وجہ سے زبان لڑکھڑا گئی. یہ نہیں تھا کہ بیٹا پڑھ چشتی رسول اللہ. دیکھیں کس چیز کو کہاں سے ملاتے ہیں. وہ بزرگ بھی دیکھیں خاص حالت میں ہوتے ہیں. پھر میں وہ خادم حسین رضوی صاحب والی بات کروں گا, انہوں ہلکا نہ جانو. ہاں جڑا پونکتا جے نبی تے پونکتا جے. تو تواڈے بزرگ بھی نبی تے پونکے گئے نے. تو دیکھو جنہ انہوں نے پچھلے 1200 سال پونکیا سی, 12 سال اللہ تعالیٰ نے کیڈی وڈی بلا چھڑ دیتی ہے. ہاں سارا گند صاف ہو گیا جی 12 سال. ہوں صرف میمز بن دیا جی. ہاں ہوں تہاڈی چیخاں لوگ سنتے ہیں ایک وڈی بوتل رکھ کے یا دودھ پتی کا کپ رکھ کے, ہاں تے نال ایک چپساں دا پیکٹ, بس اے تہاڈی ٹوٹل اوقات جی. ہوں اب اس سے وہ نا پلی لیتے تھے کہ دیکھیں وہ اس کی بھی تو زبان لڑکھڑائی ہے اگر ہمارے بزرگوں کی. پھر میں یہ بات کروں گا, یہ پھر بات اللہ کے بارے میں ہے, رسول اللہ کے بارے میں نہیں ہے. میں بریلویت دی دائی ہاں, 31 سال میں بریلوی رہا. میرا تو بڑا کیڑا بریلوی ہے. آج بھی میں بریلوی پڑھ کے بہت ہے, ابھی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہاں منو دسو گے. ہاں با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار. دیوانگی صرف اللہ کے لیے ہے, رسول اللہ کے لیے دیوانگی نہیں چلے گی. ہاں جی.